aspirants, it's time. It's time to learn the A to Z of English with ABC अभ्यांश चौहान, your English trainer. बच्चा पार्टी, आप लोग जानते हो कि एग्जाम की डेट्स आ चुकी है. And it's high time that we practice a lot of questions that were asked in the previous years, as well as at the same time we need to keep an eye कि future years में क्या-क्या questions आ सकते हैं. So I welcome all the IPMAT aspirants. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, so you have to hit that subscribe button. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe and press the bell icon as well. Now let's proceed कि भाई trickiest questions आपके IPMAT exams के लास्ट 2-3 ईयर से ग्रामर, स्पेसिफिकली ग्रामर रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछ रहा है, और ग्रामर की ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से वो एरियाज हैं जहां पर आपके स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है. सो हियर आई एम विद अ फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस as well as keeping an eye on what can be asked in IPMAT 2024. So I hope you guys are ready. Let's now begin with our session for today. So here I have the first question, one of the most preferred ways जहां से आपसे IPMAT में questions पूछे जा रहे हैं, that is sentence improvement. They don't ask you questions based on spotting errors or error detections anymore. What they are focusing more on कि भाई sentence improvement. Now sentence improvement में if someone comes to me and says कि sir मेरे sentence improvement के questions गलत हो रहे हैं, so I will be very surprised and I'll say कि भाई आपके sentence improvement के questions गलत नहीं हो रहे हैं. The problem lies कि आपके grammar skills अच्छे नहीं हैं, आपके grammar areas में आप weak पढ़ रहे हो. That is the reason कि आपके sentence improvement के questions गलत हो रहे हैं. So here I am with a question from IPMAT 2022. अब क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं ग्रामर के वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो मुझे यहाँ पे हेल्प करने वाले, बिकॉज it's all about grammar, it's all about vocabulary, and these are the things that help you in sentence improvement, they help you in parajumble, they help you in para completion. So the first question that we have is, if I had known that you needed to go to the airport yesterday, I could drive you there. Now this part is underlined, could drive you there. आपको पहले तो ये समझना है कि सेंटेंस में कहानी क्या चल रही है. व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? आर दे टॉकिंग अबाउट एनी कंडीशन, और इट्स अ जनरल सेंटेंस, और इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो? लाइक आई ऑलवेज से, वर्ब्स ये सब कुछ है. अगर आप वर्ब्स को पकड़ना सीख जाते हो, सो देयर इज नथिंग इन द एग्जामिनेशन जो आपको ट्रबल कर सके. इट इज एज सिंपल एज दैट. Now, if I read the sentence, so there is a big if. There is a big if in this sentence. जहां पर if आ गया, इसका मतलब क्या है? Conditional. Condition की बात हो रही है कि if this happens, that happens. If this would have happened, that would have happened. Conditionals में हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि future conditional क्या होता है, past conditional क्या होता है, imaginary scenarios क्या होते हैं, zero conditionals क्या होते हैं. We have done all these things. अब यहाँ पे if I talk about भाई बात क्या चल रही, if I had known, so this part is in past perfect tense. So as soon as you see past perfect tense, आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, that this sentence is all about past conditional. Past conditional में आपका कितना अच्छा कमांड है, that decides कि आप इस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. ठीक है. अब पास्ट कंडीशनल में एक और चीज होती है. क्या होता है भाई कि पास्ट कंडीशनल जहां पर भी होता है, सो बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर इन पास्ट परफेक्ट टेंस. अब मैं रीड करने से जाता हूं. ठीक है. सो इफ आई हैड नोन दैट यू नीडेड टू गो टू द एयरपोर्ट यस्टरडे, आई वुड हैव ड्रिवन यू देयर. ठीक है. पास्ट कंडीशनल की बात होती है जहां पे, सो वुड भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं. नंबर 1 परफेक्ट टेंस है, आप सुन रहे हो, परफेक्ट टेंस है और हैज हैव ना हो, हैड ना हो, V3 ना हो. क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो. सो व्हेनेवर वी हैव मॉडल वर्ब, सबसे पहले उसके साथ मॉडल वर्ब के साथ वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में भी कैसा फॉर्म, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म. समझना बात को. You never write like this ना, you never write like this कि would plus plays. सुना है कभी सुना है? अगर सुना है तो गलत सुना है. No, हम इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते. We never write would plus plays.
Similarly, we never write would plus played. So that is the reason would, have, and driven is your V3. Whenever we are talking about perfect tense में V3 ना हो, it is not possible. ठीक है? So that was the answer to this question. Why other options are incorrect, उस पर भी देख लेते हैं कि भाई modal verb should, we cannot use modal verb should in conditional sentences. Number two, option three में would drive you there, it has to be in past perfect tense. Perfect tense नहीं था, have had नहीं था, इसीलिए this option is also incorrect. So for the question number one, आपका correct answer था option two. IPMAT 2022 में question पूछा गया था. If you say कि सर इसका difficulty level कितना था, तो I would say it was one of the easier questions. Because conditionals, tenses, subject verb agreement, these are some of the topics which I expect कि यार अगर कोई बच्चा IPMAT की preparation कर रहा है, so ये topic तो बिल्कुल उसके लिए it's like a piece of cake कि अगर ये questions आ गए तो सर यहाँ पे तो मैं marks lose नहीं करने वाला हूँ. I will pounce on these questions and make sure कि यहाँ से कोई गलती नहीं होने वाली है. So that was question number one, students. Let's move to the next question that we have. Again, we have a question from IPMAT 2022. IPMAT 2022. And I want you guys to give it a try. क्या लगता है? Again, sentence पढ़ने जाना है, sentence को समझने जाना है कि बात चल क्या रही है एक्चुअल में. कुछ भी अपने लॉजिक नहीं आपको यूज करना है वहां पे. You have to go in accordance with what is written here. So the principal and the professors are authorized to sanction leave to a student on a condition. Provided लिखा हुआ है ना, provided लिखा हुआ है. So all these words, if, provided, until, unless, they all express a certain type of condition. और जितने भी conditional sentences होते हैं वहां पर fixed rules होते हैं और उन्हीं rules पर हमें ध्यान देना है. So what is that fixed rule, उस पर जरा बात करते हैं. Provided she will have a good attendance record. Now ये देखते से ही मुझे समझ में आ रहा है कि will का use is incorrect. Conditional sentences में there are two parts. The first part is the condition part. So condition part में भी आप जहां पर भी conditional word होता है उसके साथ एक और condition will. What does will express? Will expresses a possibility of something that will happen, that will take place in the future. So पहले तो यही नहीं पता कि वो condition meet होगी या नहीं. उसके बाद will भी अगर यूज कर रहे हो, so if ये जितने भी sentences हैं, जितने भी conditional words हैं, इनके साथ आपको याद रखना है कि will, would, ऐसे likely, probably, possibly, इस तरीके के adverbs हम नहीं यूज करते. Is that clear to everyone? अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं. So provided she dash have a good attendance record. So again आपको पता है कि a good attendance record में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये कंडीशनल पार्ट है, ये जो कंडीशनल पार्ट है, ये किस टेंस में हम लिखने वाले हैं. ठीक है. सो प्रोवाइडेड, एज आई सेड, विल यूज नहीं हो सकता, सो ऑप्शन टू इज एलिमिनेटेड. Provided that a good attendance record is maintained by her. Again, this part is in passive voice, तो passive voice का तो कोई यूज था ही नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे. had past event की बात हो रही है. So the entire conditional part is always written in simple present tense. Provided she has a good attendance record. IPMAT 2022 का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो आपने मल्टीपल चीजें दिमाग में सोची होंगी कि सर मुझे तो ये वाला ठीक लग रहा है. इट इज अ गुड अटेंडेंस रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड बाय हर. पैसिव वॉइस कैसे हो सकता है? देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर टू द सेंटेंस ना. अब ये चीजें जो मैंने बताई कि भाई इन वर्ड्स के साथ विल यूज कभी नहीं होता, विल, पॉसिबली, लाइकली, क्योंकि दीज वर्ड्स आर कंडीशंस इन देमसेल्व्स. अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल आपको बता दो, एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल. इफ आई एम टू राइट, if I will come, I will meet you.
So is this sentence grammatically correct, students? I'll try and relate कि why specifically have I chosen this sentence और उस question से इसका क्या लेना देना था, इस पर भी आते हैं. Now what the sentence is कि if I will come I will meet you. As I said कि if use कर लिया, ठीक है, so will use नहीं करेंगे because this itself is a condition. चलो ये बता दो, which action will take place first? The person will come or he'll meet? Which action will take place first? So the action of meeting will depend if he comes or when he comes rather. Isn't that so? So that is the reason यहाँ पे will use नहीं करेंगे. And the dependent part. This is your dependent part. This is your dependent part. And dependent part can be written in future indefinite tense. That is absolutely correct. But the conditional part is always written in future, it is always written in simple, present simple, present indefinite, जो भी नाम आप इसे देते हो. मतलब the action of meeting will depend if the person comes or not. Similarly, if I come back to the previous question, the principal and professor are authorized to sanction the leave. They will allow that to happen only if a condition is fulfilled. And what is that condition? That the student or that she has a good attendance record. So this part, the part which is dependent, will always be written in simple present tense. Is that clear to everyone? ठीक है? Seems like सारी बातें clear हैं. That brings us to question number 3, students. That brings us to question number 3. Again, one of the more easier questions. Easier because मैं आपको ये चीजें अब समझा रहा हूँ, so you would feel हाँ sir question तो easy था. It was not such a big deal. But अगर there are some areas, अगर आप practice करके नहीं गए हो, so you can get stuck in these questions. So I'll move out of the frame. I want you all to give it a try. When all the words on the page got scrambled, she quickly pressed undo, after which the document reverted back to its original state. Its original state. So मैंने जितने भी आप लोगों के पेपर्स रिसर्च किए हैं, जितने भी पेपर्स का एनालिसिस किया है, मैंने देखा है कि प्रोनाउन बेस्ड और पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे. वील कम टू ऑल दोस थिंग्स. बट if I come to this question now, one of the most common errors that you make while speaking, and whenever we are speaking we feel कि हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब okay चल रहा है, but no, this does not work when you're giving your IPMAT entrance examination, because when you're doing that you have to be grammatically correct. बोलने में क्लास में आप लोग अक्सर मेरे से बोल जाते हो सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, can you please repeat again? And I'm like, repeat? तक तो ठीक था. I get that. But repeat plus again, does that make any sense? Doesn't that make it redundant? उसका कोई use नहीं था. Similarly, there is an endless list of superfluous expressions in English जिनको साथ में use नहीं किया जाता है. Whenever these words are used together, they become superfluous, and superfluous expressions are grammatically incorrect. जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता है वो बोलने में बोल जाते हैं. अक्सर हम बोल जाते हैं यार ही इज माय कजिन ब्रदर, ही इज माय कजिन सिस्टर. बोलने में आप कुछ भी बोलो, इट डज नॉट मैटर, बट इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. सिमिलरली रिवर्ट. नाउ व्हाट डज रिवर्ट मींस? वापस टू द ओरिजिनल स्टेट. सो रिवर्ट प्लस बैक इज समथिंग जो देखते से ही आपको क्लिक होना चाहिए था. ठीक है, जैसे इफ आई से आई विल रिटर्न बैक द मनी, and return plus return back बोलते से ही I'll feel like यार ये क्या बोल दिया. Return भी back भी, it does not make any sense. Similarly, there are other words as well. उन पर भी हम थोड़ा सा discussion करेंगे. So when all the words on the page got scrambled, she quickly passed undo. Undo दबाते से ही what happened? The document reverted to its original state. The document तो back नहीं हो सकता, ये दोनों eliminate हो गए. इन दोनों चीजों में भी I have seen a lot of students struggle with its and its.
this is it plus is, and this is your possessive adjective. Possessive adjective, not a pronoun. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है. So document reverted to its original state. The correct answer is option 4. As I said at the starting of the session, it's not just about getting to the correct answer. क्या लॉजिक है, क्या क्या वो और एरियाज थे जहां पर एग्जामिनर हमको टेस्ट कर सकता था, मुझे उन सारे एरियाज पर फोकस करना है. And seems like everybody is enjoying the session. So if you guys are really enjoying the session, do like the session, और जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो आपको सेशन को शेयर भी करना चाहिए. ठीक है. That was about this question. IPMAT 2022. Again, I would say tricky in some sense कि अगर आपको इसका यूज नहीं पता है, इट्स का यूज नहीं पता है, अगर आपको सुपर फ्लॉ से रिलेटेड रूल्स नहीं पता है, तो आप यहाँ पे स्टक हो सकते थे. ठीक है. और क्या यहाँ पर एरर एग्जामिनर अपने एंड से कर सकता था, रिवर्टेड टू की जगह भाई इनटू लिख देता प्रीपोजिशन. सो चीजें तो घूम फिर के वही है ना, चीजें वही हैं जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हो, चीजें वही हैं जो आप टेंस में पढ़ रहे हो, नरेशन में पढ़ रहे हो, वॉइस में पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे हो. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. अब कुछ और वो एरियाज जहां पर भी सुपर फ्लॉज एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, जैसे बैक के साथ वी नेवर यूज recall, we never use recede, we never use retreat, we never use reimburse plus back. ठीक है, इन सारे वर्ड्स के साथ we never use back. Similarly, rebuilt, recall, repeat. With these words, we never use again. ठीक है. So there is an endless list of superfluous expressions. Superfluous expressions आपको पढ़ना is of utmost importance. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप सारे ग्रामर टॉपिक्स पढ़ लेते हो, you go through all the parts of speech, narration, voice, verbs कि हाँ सर बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश होता है उसमें डिफरेंस होता है. ठीक है. So that was all about this question. Let's move to the next question, students. Next question. He was having a difficult time, but never once he complained. IPMAT 2022. IPMAT 2022. बता दीजिए भाई. IPMAT 2022 का क्वेश्चन है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट एग्जामिनर का बड़ा ही प्रिफर्ड फॉर्मेट रहा है फॉर द पास्ट 3-4 years. एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आप स्टक हो रहे हो, सो इट्स नॉट अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स जस्ट दैट कि आपके ग्रामर स्किल्स, आपके ग्रामर के रूल्स उतने अप टू डेट नहीं है. ठीक है, इन्हीं बातों पर फोकस करना है. सो इफ आई रीड दिस सेंटेंस अगेन, ही वाज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम बट नेवर वंस. नाउ दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नेवर लिखा हुआ है ना. अब इसको अगर मुझे ग्रामेटिकली करेक्ट करना है तो मुझे डिड चाहिए. सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन मुझे डिड चाहिए. ये भी एक ग्रामर का रूल है. बहुत रूल्स आप पढ़ के चले जाते हो, सब कुछ पढ़ के चले जाते हो, एक्सेप्शंस आप नहीं ध्यान दे रहे हो, पर एग्जामिनर का वहीं पे ध्यान है. एग्जामिनर आपको उन्हीं सेम एरियाज पे, उन्हीं सेम स्किल्स पर टेस्ट कर रहा है. तो आई होप अभी तक गलती हो रही थी, हो जाए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा पार्टी. When it comes to your examination, अब ये गलतियां मेरे स्टूडेंट्स नहीं करने वाले. ठीक है ना. क्वेश्चन पर वापस आते हैं. He was having a difficult time, but not, never नहीं आएगा, not आएगा. Not once did he complain. ठीक है, it complaint लिखा हुआ है, तो complaint तो भाई क्या होता है, complaint आपका नाउन होता है. मुझे नाउन नहीं चाहिए, did है तो did के साथ what I want a verb. And sentences that have did and did not, they always take first form of the verb. Similarly, not once any complaining happened. नहीं, did चाहिए था मुझे, जो कि मुझे it was not given in the third option, the fourth option. Second question was incorrect because I needed first form of the verb. I did not need a noun. ठीक है. So बच्चा पार्टी, that was again one of those questions from IPMAT 2022, which a lot of students might have found a bit difficult, bit tricky for the simple reason कि उन्होंने ग्रामर स्किल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रामर के रूल्स को
इग्नोर करके चलिए, ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Next question. If I think there is some problem with the format, I will read this question to make it more clear. Again, it is from IPMAT 2021 examination. Other politicians may have claims to seniority over their peers based on their accomplishments and their ability to lead campaigns. But Alexandra Ocasio-Cortez, who is often described as someone, described as merely लिखा हुआ है, so ये merely ही गलत है। पहले तो ये adverb का usage ही गलत है। Merely being a junior member of the House of Representatives has an unparalleled seniority over all of them by virtue of her prowess in social media management. ठीक है, बहुत सारे आप बोलोगे कि सर बात तो ग्रामर की हो रही है, बट वो कैब स्किल्स के लिए भी मुझे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से मिल रहे हैं। सो जो वर्ड्स स्टूडेंट्स आपको लगते हैं काम के हैं, रेलिवेंट हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज नोट इट डाउन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एज आई सेड कि द पोजीशन ऑफ मियरली इज इनकरेक्ट, ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज मियरली बीइंग, तो मियरली नहीं आ सकता, मियरली नहीं आ सकता। बस अगर मुझे इतनी बात पता है, इतनी बात अगर मुझे पता है, तो फिर मुझे कुछ भी देखने की जरूरत यहां पे नहीं बचती है। एग्जाम में करेक्ट आंसर करने के देयर आर ओनली टू वेज। नंबर वन, द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। नंबर टू, अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज आपको वो ऑप्शंस पता होने चाहिए जो गलत है। आइदर वे अराउंड यू विल गेट टू द करेक्ट आंसर, सिंपल इज दैट। एज अ मेयर जूनियर मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, merely का यूज नहीं होगा, द यूजेज ऑफ दिस एडवर्ब इज इनकरेक्ट। So for this question, the correct answer is option 4. One of those questions जो IPMAT 2021 में आया था, बच्चों ने गलतियां करी होंगी, बट अगर IPMAT 2024 में आता है तो आई एम वेरी होपफुल, रादर आई कैन से विद कन्विक्शन कि मेरे स्टूडेंट्स अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है। That brings us to the next question, students. Although the coastal area of Kundapur was once home to a flourishing maritime trade, their economy has been dependent in more recent years on the cotton, textile and sugar industries. तो थोड़ा सा तो मुझे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं लग रहा है। नंबर वन, क्वेश्चन को देखते से ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। नंबर टू, there can be some grammatical errors as well. So let's see if you guys can answer this question from IPMAT 2021. सबसे पहली बात अगर मैं स्टूडेंट्स देखने जाऊं तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, क्या? इट्स अ कोस्टल सिटी, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिर्फ इतनी सी बात अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं, सो इट मेक्स माय जॉब अ बिट इजियर। इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस, इजंट दैट सो? सिंगुलर प्रोनाउन चाहिए था, यहाँ पे देयर यूज हुआ है। देयर पे आते से ही मैं रुक जाऊंगा कि नहीं बॉस, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं इसके आगे नहीं जाने वाला। दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। सो अब मुझे चाहिए क्या? अब मुझे चाहिए पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे गलत यूज हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव मुझे चाहिए, एंड फॉर दैट आई विल यूज इट्स। इट्स का यूजेज क्या होता है अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताया। सो एज आई सेड, सॉरी, इट वाज नॉट अबाउट द यूजेज ऑफ प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव गलत यूज था यहाँ पे, आई बेग योर पार्डन, इट वाज नॉट प्रोनाउन, सो इट वाज एडजेक्टिव। मुझे बस इट्स ढूंढने जाना था, बाकी आई एम नॉट बॉदर्ड, मैं बाकी चीजें देखने नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई नो द इकोनॉमी इज इनकरेक्ट। मुझे यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं थी, मुझे एडजेक्टिव की जरूरत थी। देयर इज इनकरेक्ट। इट अपोस्ट्रोफी एस जो हम लिखते हैं, इट मीन्स इट इज, ठीक है, इट इज नॉट इट्स। पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था मुझे, राइट? सो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन। Let's come to the next question, students. If you guys have any problem regarding your IPMAT 2024 preparation, verbal ability section,
आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सारी प्रॉब्लम्स अपनी बता सकते हो. वी आर देयर टू हेल्प यू गाइज आउट. एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम IPMAT 2021. As I said, sentence improvement is one of the preferred ways, one of the preferred question types that they have been using for the last 3-4 years. Now, if I talk about specifically this question, due to the progress in the field of modern medicine and advances in nutrition and hygiene, less people, or rather less people die every year from infectious diseases, THEN, than ever before. ये देखते से ही मुझे समझ में आ गया कि THEN देन का तो कोई यूज है ही नहीं. ठीक है ना, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है. दिस इज बेटर देन दिस इज बेटर देन दैट. सो कौन सा देन? नॉट THEN देन. THEN देन तो एडवर्ब की तरह यूज हो जाता है. वी विल यूज THEN देन. आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन करने जाओगे ना, एग्जाम का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहला तरीका, आप सारी चीजें एक बार पढ़ लो, उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे कि जहां पर भी एरर है, जो ऑप्शन गलत है, मेरे व्हाट आर दोस कीवर्ड्स जिन पर मुझे फोकस करना है. दैट इज हाउ यू शुड ट्रेन योर ब्रेन कि भाई इसी तरीके से मुझे क्वेश्चन देखते से ही क्लिक होना चाहिए कि THEN देन इज रॉन्ग. सो दीज टू ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड. एवरी ईयर पहले आएगा या फ्यूअर पीपल पहले आएगा? सो इट डज नॉट मेक सेंस कि हम एवरी ईयर लिखेंगे. हम क्या हो रहा है ड्यू टू मॉडर्न मेडिसिन एंड एडवांसेस इन न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, एक्चुअल में क्या हो रहा है पहले वो स्टेट करना जरूरी है. फिर एवरी ईयर की बात हो रही है, किस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और एडिशनल क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दैट विल कम लेटर ऑन इन द सेंटेंस. ठीक है. सो फ्यूअर पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस देन एवर बिफोर. अगेन यहाँ पे हैव एवर बिफोर लिखा है, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. IPMAT 2021 trickiest questions. These are trickiest questions for people who are not studying properly. जो बच्चे बातों को समझ रहे हैं, जो बेसिक्स पर अच्छे से कमांड बना रहे हैं, उनके लिए these questions are a piece of cake, as I said. Now coming to IPMAT 2023, जहां पर as trainers and as students as well, a lot of us were of the opinion कि this was the easiest paper. बट अगेन इस easiest पेपर में भी ग्रामर के वो कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन कौन से जो एरियाज हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं. लेट्स कम टू दैट. सो द सेटिंग ऑफ स्टोरी इफेक्ट्स द स्टोरीज प्लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड अफेक्ट. सो इफेक्ट इज अ नाउन and affect is a verb. The setting of the story, now this is your subject. So in any sentence, what can you expect after subject? क्या होना चाहिए? Either it could be some additional information about that subject, or there has to be a verb. It cannot be like कि subject लिखा और फिर noun आ गया. अगर noun आ भी रहा था तो फिर there has to be some conjunction, जो यहाँ पे नहीं है. So noun की जरूरत नहीं थी. I wanted a verb in this case. So ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया. नाउ द स्टोरीज प्लॉट, इसी स्टोरी की बात हो रही है. सो दिस स्टोरी, यहाँ पे सिर्फ स्टोरी लिखा है, सो दैट इज इनकरेक्ट. सिर्फ क्या आना चाहिए? अफेक्ट्स द स्टोरीज प्लॉट. क्यों? फॉर द सिंपल रीजन दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब. यहाँ पर दे हैव यूज्ड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Let's move to the next question. Again, IPMAT 2023. Let's read this question now. My aunt Seema was the most generous of all the members of the family. Whenever we went out for dinner, she always insisted dash dash. ठीक है, क्योंकि जो underlying part है वो incorrect है. Now here comes the role of phrasal verbs. Now what is a phrasal verb? भाई phrasal verb में क्या होता है? There is a verb which is accompanied by a preposition. Verb होगा, it is accompanied by a preposition. इस पर हमें ध्यान देना है. So there are certain verbs जिनके साथ fixed होता है कि भाई कौन सा phrasal verb आना चाहिए. So with insisted we use on. Insisted we use on. So the correct answer is insisted on paying for the meal. IPMAT 2023 trickiest question for people who were not studying properly. It could be tricky for people who were just studying the basics.
थोड़ा सा डीप में जाएंगे, फ्रेजल वर्ब्स पे भी ध्यान देंगे, वोकैबुलरी एनहांस करेंगे, वो चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम IPMAT 2023. Listening to the recording of cricket commentary from the past can be great fun, especially the last few overs when the best players are gone and the tail enders try their best to run between the wickets without getting out. This is when you realize that nothing much has changed, hasn't it? It's a question from question tag. Question tag. Now you guys must be wondering कि सर पूरा ग्रामर हमने पढ़ लिया, पूरे रूल्स हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन टैग. नाउ वेयर इज द एग्जामिनर कमिंग फ्रॉम? सो एग्जामिनर यहाँ पे आपके बेसिक्स को ही टेस्ट कर रहा है कि क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा है या नहीं, क्वेश्चन टैग के रूल्स आपको पता है या नहीं. So I'll give you a quick review of how question tag questions are. Question tag questions में if the sentence is positive, the question tag is negative. Question tag में we always have contracted form. Question tag में we always use pronouns. तो ये कुछ ऐसे बेसिक सी बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी whenever there are questions from this topic. Now nothing negative लिखा हुआ है ना, so question tag negative नहीं हो सकता, it should be has it. बस मैं अगर स्टूडेंट की तरह इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं किसी भी ऑप्शन में कुछ भी देखने नहीं जाऊंगा. मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि क्वेश्चन टैग हैज इट मुझे कहां पर दिख रहा है, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी. आंख बंद करके मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा. सिमिलरली इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सेशन, आपको भी आंख बंद करके सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को बजाना बहुत जरूरी है भाई. सिंपल सी बात है, बेल आइकन नहीं बजाओगे तो आगे वाले वीडियोस कैसे देखोगे? ठीक है ना. That was this question from IPMAT 2023. Now as I said, it is imperative कि हम previous year questions तो करके जाएं, but at the same time हमारी नजर इस पर भी होनी चाहिए कि future years में क्या क्या चीजें हो सकती हैं. So here I am with a couple of questions जो आपके IPMAT में नहीं आए हैं, but उनका flavor आपको वैसे ही दिखने वाला है. So here's our first question, students. In central Gaza, the Al-Aqsa martyrs in Deir al-Balah received the bodies of 33 people killed in strikes overnight, including 16 women and 4 children, according to hospital records. Noun का बड़ा ही basic सा question है, ठीक है. If I have any of these questions in my exam, I would recommend कि आपको इस question में you should not take more than 30 to 40 seconds. आप ऑप्शंस देखने मत जाओ, आप सिर्फ ये देखो, इंक्लूडिंग इज करेक्ट. 16 वुमेन मुझे प्लूरल चाहिए, चिल्ड्रन को और प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है. चिल्ड्रन इटसेल्फ इज प्लूरल. कहां पर दिख रहा है? मुझे यहां पर दिख रहा है चाइल्ड्स गलत होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता, 4 चाइल्ड नहीं होता. इंक्लूडिंग 16 वुमेन एंड चिल्ड्रन. अब आप मुझे बता दो कमेंट करके, क्या इस क्वेश्चन में did we need more than 30 to 40 seconds? 30-40 seconds भी स्टूडेंट्स मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं, ट्रस्ट मी. ठीक है. Then let's come to question number 15. For better or for worse, the Indian state has witnessed a penchant. What is penchant? Penchant is liking for something or fondness for something. For better or for worse, the Indian state had witnessed a liking for arbitrary deprivations of liberty since its founding, unwillingly equipping its courts with enough means to try and secure the promise of liberty. It's सबसे पहला एरर तो मुझे ये दिख रहा है, मुझे दिख गया, आपको दिखा या नहीं दिखा, ये इंपॉर्टेंट है. सो इट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूंगा. ऑफ कोर्स कोर्ट्स प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पे कोर्ट्स लिखा है तो इस ऑप्शन को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा बिकॉज ऑफ कोर्ट. इनफ मीनिंग और इनफ मीन्स, ये मुझे डिसाइड करना था. सो इट्स नॉट अबाउट इनफ मीनिंग, इट्स ऑल अबाउट इनफ मीन्स कि कितने रिसोर्सेस के साथ वी आर ट्राइंग टू इक्विप आवर कोर्ट्स, आवर जुडिशियल सिस्टम. ठीक है. सो मीन्स का स्टूडेंट्स यहाँ पे यही रोल था, एंड फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है, पर जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं
उनसे ही मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन. That brings us to the next question, guys. A solitary cat prowled the quiet neighborhood, its eyes reflecting the dim glow of the moon overhead. Stillness in the night. Stillness in the night. Stillness in the night? नहीं. The stillness. तो ये तो सर आप बोलोगे कि ठीक है, वो तो सारे ऑप्शंस में दिख रहा है. But what about the other areas in this part? So वो देखते हैं. Stillness of the night was occasionally interrupted. Again, interrupted with is incorrect. Interrupted by is the correct usage. यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. Stillness in the night नहीं होगा. Stillness of the night. We are talking about stillness. किसका stillness? Night का stillness. So we need a preposition to express relation between the two. In this case, we need a preposition to express relation. ठीक है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि नाइट में स्टिलनेस है. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टिलनेस ऑफ द नाइट. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस रिलेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो अब अगर एग्जाम में आता है, सो आई एक्सपेक्ट कि मेरे स्टूडेंट्स को ट्रबल नहीं करेगा. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. बट बिफोर लीविंग, आप ये देख रहे हो, क्या आप चाहते हो कि आपकी फोटो भी इसी तरह से आए? क्या मैं आपका नाम भी इतने प्राउडली लूं? So what you guys need to do, you have to study. Number one, बहुत ही simple सी बात है. Number two, you have to subscribe to the channel. You have to like the videos. And if you guys have any doubts, any problems regarding your IPMAT 2024 preparation, please write it down in the comment box. That was all from my side, students. कल मिलते हैं with another session. तब तक के लिए, thank you so much.